Welcome back to the third session of Android Study Jams, everyone. I am Ritika Talukdar, your facilitator for this program. In the last class, in the last two sessions, we completed the first three batches in which we learned about Kotlin and the different layouts in the Android development. And we also did some view groups, right? We did the first three badges, and those of you who have completed the badges, I hope you have made the About Me app also, which was mentioned in the third badge or third pathway, whichever you want to call it. Oh, great, Sonali, sorry. Okay, so I hope you have revised the previous concepts. I know after exams aaye hain to thoda sa miss ho sakta hai. So I'll revise the linear layout portion of the third batch today also. Like we will code how to make a layout, how to make a linear layout at the end, towards the end of the session. Usse pehle, let's look about. I'm sorry, wait. Okay. Before that, let's look at some concepts which you should know before creating your Android apps. Understanding activity and activity lifecycle. So let's take an example of Instagram app. Okay, हम सब use करते हैं. That's why I took this example because it's easier for you all to understand. अब आप जब when you first open the app, आपको ये screen दिखती है, which is the main page of Instagram, which is the home, your feed, right? So this screen is called an activity, and जो भी apps का आपका home page होगा, which will be the first screen when a user opens your app, that page is called the main activity. Okay, so different kinds of screens in an app are called different activities. अब हर activity has different states: on start, on pause, on create, on destroy. Every activity has different states. We'll look at these states in just a bit, but मैं इस पर समझाने के लिए I'm telling you. जैसे जैसे यूजर आपकी ऐप को यूज करता है और जैसे जैसे यूजर navigates throughout an activity goes through different states. अब जैसे आपने पहले इंस्टाग्राम खोला, आपको ये पेज दिखा, which will be your main activity. Now suppose you click on someone's profile and you check out their profile. अब ये प्रोफाइल की अब देखोगे ये स्क्रीन एंड ये स्क्रीन अलग दिख रहे हैं, राइट? इसमें यहाँ पे स्टोरीज है, यहाँ पे नीचे पोस्ट्स है, whereas यहाँ पे प्रोफाइल के यूजर का नाम है, उसकी डीपी है, फिर स्टोरीज है. मतलब इसका लेआउट एंड इसका लेआउट इज डिफरेंट, राइट? So these two are different activities. Similarly, if you click on the chat box section, your messages section, इसका भी लेआउट डिफरेंट है. इसमें सारे ऐसे चैट्स ऐसे एक लिस्ट टाइप में है. ऊपर यू कैन सर्च, whereas here there's an image, there are posts. Similarly, इसमें भी यहाँ पे स्टोरीज है, यहाँ पे पोस्ट है. These three layouts are different. So these three are called activities. There are three different activities. But suppose आप किसी के प्रोफाइल पे हो, राइट? और आपने इस इमेज पे क्लिक किया. जो इमेज वाली पोस्ट आती है ऐसी आती है ना, यहाँ पे एक इमेज आता है, नीचे कैप्शन आता है, यहाँ पे कमेंट्स आते हैं. हर एक इमेज का सेम ही लेआउट होता है, बस वो इमेज चेंज हो जाती है, कैप्शन चेंज हो जाता है, बट वो लेआउट तो सेम रहता है, राइट? सो अगर आप अलग अलग इमेज में क्लिक करोगे, सो दोज विल बी द सेम एक्टिविटी. image wala post and this profile wala screen, these two will be different activities. But if you click on any post, that post and another post, those will be the same activity. Similarly for a profile also, agar aapne iski profile dekhi, yeah, you check out this Angela's profile, वो profile and this Nalina की profile, इन दोनों की profile की activities will be the same. बस आपका वो कंटेंट चेंज रहेगा, बट एक्टिविटी विल रिमेन द सेम. ऐसे ही एन ऐप कैन हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज, बट एक मेन एक्टिविटी सिर्फ सिंगल होती है क्योंकि वो आपका होम पेज होता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैंडिंग पेज. वो आपका फर्स्ट स्क्रीन होता है. सो यू कैन ओनली हैव वन मेन एक्टिविटी बट लॉट्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क.
सो अब लाइक आई मेंशन्ड हर एक्टिविटी की अलग अलग स्टेट्स होते हैं, राइट? अच्छा, इससे पहले लेट्स लुक कि अगर आपको इसका कोड लिखना होगा, आपको एक्टिविटी का कोड लिखना है, तो कैसे लिखोगे? यू विल क्रिएट एन एक्टिविटी क्लास एंड हर क्लास के अंदर देयर विल बी डिफरेंट मेथड्स. अब जो मैंने आपको मेंशन किया कि एक्टिविटी हैज डिफरेंट स्टेट्स लाइक क्रिएट, पॉज, स्टॉप, ये स्टेट्स को कॉल करने के लिए यू हैव मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड कॉल बैक्स. ठीक है, अभी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, बट अभी के लिए एज अ ब्रीफ ओवरव्यू, हर स्टेट को कॉल करने के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड कॉल बैक्स एंड दे आर रिटन अंडर द एक्टिविटी क्लास. अगर आप इन मेथड को बाहर लिख दोगे एक्टिविटी क्लास के, तो आपका या तो एरर आएगा या आपका वो ऐप क्रैश हो जाएगा. अब every activity has its own life cycle. सबसे पहले जब आप कोई भी ऐप ओपन करते हो तो आपका वो स्क्रीन, आपके ऐप लॉन्च होता है, राइट? तो सबसे पहले जो आपका मेन एक्टिविटी इज द फर्स्ट एक्टिविटी विच आई मेंशन बिफोर. तो उसको सबसे पहले वो एक्टिविटी गोज टू द ऑन क्रिएट स्टेट. ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड एंड इट गोज टू द क्रिएट स्टेट. आपकी वो एक्टिविटी क्रिएट हुई, बट वो सिर्फ क्रिएट हुई है, आप उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते. उसमें अगर कुछ भी बटन्स है या इवन इफ यू वांट टू स्क्रॉल और इवन इफ यू वांट टू लाइक टच दैट स्क्रीन एंड डू समथिंग या बैक बटन भी दबाना है, वो नहीं होगा. इट इज जस्ट बीइंग क्रिएटेड. देन द एक्टिविटी गोज ऑन टू द स्टार्ट मोड एंड दिस स्टेट, इसमें यू कैन इंटरैक्ट विद द एक्टिविटी. क्रिएट में सिर्फ आपका लेआउट जो होता है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेआउट फाइल and आपके पास layout show होता है, but you cannot interact with it. Once it goes on to the on start method, then only you can interact with that activity. अब ऐसा नहीं है कि आपका create हुआ और फिर 10 घंटे बाद on start हुआ. These three, on create, on start and on resume, these three are done in quick successions, like in a matter of microseconds से भी कम time में इन ये three activities, ये three callbacks are called. ठीक है, तो वापस एक बार बोल देती हूँ. जब आपका आप you open an app, the activity is launched, it's created, its layout file is extracted from the layout file, then it goes on to the on start method where the user can interact with the activity, then it goes on to the on resume method. on start में आपका it's ready to interact with the user, but on resume में आके ही user can interact. जैसे अगर suppose आपका एक scroll view है, जैसे मैंने I took the example of Instagram. अब जैसे आपका ये पेज जैसे खुलेगा, on start on create कॉल हुआ, then on start कॉल हुआ, and now if you want to scroll down तो वो on resume में ही down scroll होगा. but अगर जैसे आप इसमें टच करोगे और आप टच करते हो ना तो स्क्रॉल डाउन, स्क्रीन को टच करोगे, जैसे वो टच करोगे वैसे वो ऑन रिज्यूम में ही वो टच होगा एंड वो नीचे स्क्रॉल होगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. चैट बॉक्स में यस लिख दो या मुझे अनम्यूट करके बोल दो. ये थ्री क्लियर हो गए? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम. ओके, फिर आपका ऑन रिज्यूम हुआ, फिर आपने इंस्टाग्राम में जितना आपको टाइम पास करना है आपने किया. फिर सपोज आपको एकदम से कॉल आ गया या किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तो आपकी जो इंस्टाग्राम के जो भी एक्टिविटी आपकी अभी अभी रन हो रही थी, दैट विल गो ऑन टू दी ऑन पॉज स्टेट, बिकॉज आपका कोई फोन में कोई और वो हुआ है, एक्टिविटी हुई है, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आया या कॉल आ गया, तो कुछ दे आर ऑफ हायर प्रायोरिटी, राइट? अगर किसी का कॉल आया तो वो उस कॉल को हायर प्रायोरिटी मिलेगी दैन द वन दैट यू आर करेंटली डूइंग. तो आपका इंस्टाग्राम विल गो ऑन टू दी ऑन पॉज मेथड. ना सपोज आप बहुत टाइम तक कॉल पे हो एंड आप वापस ही नहीं आ रहे उस ऐप पे, तो आपकी वो ऑन पॉज से चला जाएगा ऑन स्टॉप मेथड पे.
Now, suppose you do not come back to the app and you go on to some other app, then the activity which was in the on stop method, it will go to the on destroy method and वो destroy हो जाएगा. फिर आपको वो जब भी आप इंस्टाग्राम को अगर फिर से खोलोगे तो वो आपका स्टार्टिंग से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम होगा. बट suppose after your call you return back to Instagram, then from the on stop method it goes on to the on restart and then the on start method. ये भी क्विक सक्सेशन में होते हैं, इसमें भी टाइम नहीं लगता है. एंड ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय में तो आपको बता ही दिया, इफ यू डोंट कम बैक टू द एक्टिविटी देन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. नाउ सपोज आपकी कोई एक्टिविटी ऑन स्टॉप पे है बट कोई दूसरी ऐप है जिसकी प्रायोरिटी इज मोर देन द ऐप दैट यू आर करेंटली इन, तो ये एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि इसका जो मेमोरी जो यूज हो रहा है वो इज नीडेड बाय द ऐप विच हैज अ हायर प्रायोरिटी. सो योर ऑन दैट एक्टिविटी विल बी किल्ड एंड देन अगर आप फिर से उस ऐप को खोलोगे then it will go on to on create, on start, on resume again. So that was it for the activity life cycle. अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, otherwise we will move on. Okay. Now, okay, before this, let's talk about XML. अब ऐप का जो भी लेआउट होता है, जो भी UI होता है, उसको डेवलप करने के लिए we use XML. Now, XML mainly uses tags to introduce elements into a layout, whether they are views or view groups. अब जैसे आपको कोई इमेज डालनी है या टेक्स्ट डालना है, जो भी है, everything has a different tag. You have tag for buttons, you have tag for edit text. Edit text मतलब जैसे आप suppose Gmail में sign in कर रहे हो, that box where you type in the input, that box is called edit text. So edit text के लिए भी tag होता है. This tag is for edit text. This button is for buttons. Text view are for text views. Suppose आपको जैसे कोई title शो करना है या कुछ भी टेक्स्ट आपको लेआउट में डालना है तो दोज टेक्स्ट आर रिटन इन द टेक्स्ट व्यू. कोई इमेज डालनी है तो इमेज व्यू टैग में आता है. नाउ इफ यू वांट टू डिक्लेयर these tags in XML, सबसे पहले आपका टैग नेम आता है. दिस इज अ शॉर्टकट वे लिखने के लिए. अच्छा, मैं आप I'll show you in the Android Studio only. Okay, so let's do one thing. Let's code only abhi, and code के साथ साथ मैं I'll tell you. Everybody please open Android Studio. And मैं जैसे जैसे कर रही हूँ साथ साथ करते जाना, ठीक है? Give me a yes in the chat box कि आप कर रहे हो. Okay, so सबने Android Studio खोल दिया ना? अब इसमें create new project पे click करो, then empty activity, then next. Now you can give any name to your app. I'll give it as demo. Package name को जो है वैसे ही रहने दो. Change the language to Kotlin. And minimum SDK में you can select API 18. This means कि आपका minimum जो भी आपकी app needs for the Android version, वो Jelly Bean will be the minimum. इसके 4.3 and above in versions पे आपका ये app चल जाएगा. Here you can see कि अभी जब आप बनाएंगे it will run on approximately 98.4% of the devices. So ये usually standard हमारा यही होता है, Android 4.3 होता है. Now click on finish and wait for the Gradle sync to complete. Here you can see Gradle sync started moments ago. इसको complete होने दो. सबने बना लिया अपना?
सबने फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया ना? What about the others? Okay. Let's first look at the Android Studio. First, I'll give you a tour of this application. Then we'll move on to creating your first main activity for your app. So, सबसे पहले, this portion, this whole box is called the editor. Here you type your Kotlin code, and this is called your project view. Here you have different files. Um, just a second. Sorry, I'm back. Yeah, so here you have different files. You can see there's a file called manifest, Java, and res. First, let's look at manifest. This file has this folder has a single file called android manifest.xml. अब ये जो फाइल होती है, इसमें आपके जितना भी ऐप की इंफॉर्मेशन है which the Play Store needs and the Android operating system needs, जब आप प्ले स्टोर में अपलोड करोगे अपना ऐप, तो जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा टू प्ले स्टोर, दिस फाइल कंटेन्स दैट info. Also, when you run your app on your physical devices or on the emulator, whatever information is needed by the Android operating system, all those information is written in this file. आपको कुछ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. You just have to be concerned with this tag. That's all. यहाँ पे जो भी लिखा है आपको कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो भी ऐड होना था आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है एज यू कोड योर ऐप. तो हियर यू कैन सी इसमें लिखा है XML वर्जन 1.0 encoding UTF-8. ये लाइन हर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में होती है, सेम लाइन होती है एवरी फाइल में. दिस इज अ मैनिफेस्ट टैग. इसमें ये जो है XML एंड NS stands for namespace. NS stands for namespace and XML तो आपको पता ही है. This means कि आपका ये जो XML के जितने भी वो है इन्फो है वो इस लोकेशन में सेव होंगे. दिस इज एंड द नेम ऑफ दैट लोकेशन इज एंड्रॉइड. ठीक है, जो भी आपके लोकेशन का नाम होता है इट कम्स इन डबल कोट्स एंड उसका वैल्यू होता है इट कम्स इन डबल कोट्स एंड द नेम इज रिटन एज हियर आफ्टर द सेमीकोलन. पैकेज तो वही सेम जो हम क्रिएट कर रहे थे तो उसमें पैकेज नेम आ रहा था ना, वो सेम पैकेज नेम यहाँ पे भी आता है. Now manifest is the parent tag and application is the child tag because application is inside manifest. तो इसको हम बोलेंगे child tag, इसको हम बोलेंगे parent tag. अब एक tag को open and close करने के दो तरीके होते हैं. Either you can write like this. You open the tag. आपको जितना भी जो कुछ भी लिखना है statements, सारे statements यहाँ पे आ जाते हैं and then you close the tag like this. ठीक है, this is one way of opening a tag and closing a tag. या तो आप डायरेक्ट ऐसे ओपन करो, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स है, जो भी एट्रीब्यूट्स आएंगे वो यहाँ पे ऐसे लिख दो and then backslash and close. So this is a shortcut. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसने ओपन किया एंड क्लोज किया एंड ये देखो आपका शॉर्टकट वाला भी एक्शन इज अनदर टैग. यहाँ पे उसने ओपन किया, उसके जितने भी एट्रीब्यूट से मेंशन कर दिए एंड शॉर्टकट से उसको क्लोज कर दिया. कुछ भी आप यूज कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे.
हियर अब सी एंड्रॉयड आइकन। एंड्रॉयड आइकन मतलब जो भी आपके, जब फोन में आपका ऐप होगा, फोन में जब आपका ऐप आप लॉन्च करोगे, सो जो आइकन दिखता है वो आइकन का जो भी वैल्यू होगा, फाइल का जो नाम होगा वो यहाँ पे आता है। जो आपका ऐप का नेम होगा, जैसे मैंने नेम डेमो दिया है, जो मैंने नेम डेमो दिया था वो यहाँ पे आएगा। एंड राउंड आइकन, थीम, ये सब एज एंड व्हेन यू वी क्रिएट द ऐप आपको समझ आ जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल। इसमें ज़्यादा इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बनता रहता है। ओनली अगर आपको कभी अपना ऐप का नेम चेंज करना है तो आप ये लेबल का वैल्यू चेंज कर देना, और अगर कभी आपको अपना ऐप का आइकन चेंज करना है तो यू विल चेंज दिस वैल्यू, दैट्स इट। बाकी जितना भी हो वो सब ऑटोमेटिकली इसमें कोड आ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट फोल्डर इज जावा। अब जावा में 3 और सब फोल्डर्स होते हैं। हियर यू कैन सी 2 आर हाईलाइटेड इन ग्रीन। इससे आपको मतलब नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए, वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है कोड्स। वो तब के लिए होते हैं जब हम टेस्टिंग करते हैं अपने ऐप्स को या कोई डीबगिंग करते हैं, उनके लिए यूज होते हैं ये दोनों फोल्डर्स। हमको सिर्फ इससे मतलब है, जितने भी हम एक्टिविटीज बनाएंगे, फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, जो कुछ भी बनाएंगे सब कुछ हम इस फोल्डर के अंदर डालेंगे। ठीक है। नाउ दिस इज द मेन एक्टिविटी डॉट kt फाइल। डॉट kt मीन्स योर कॉटलिन फाइल। यह मैंने अभी जैसे बताया था, यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी क्लास होती है, राइट, एक्टिविटी क्लास, और उसमें अलग अलग कॉल बैक्स होते हैं। ये वही है, आपकी एक्टिविटी का ये नाम है, दिस इज योर एक्टिविटी क्लास। और अभी आपका सिर्फ ऑन क्रिएट फंक्शन है इस पे, बाकी मेथड्स अभी इसमें मेंशन नहीं है, सिर्फ ऑन क्रिएट है। नाउ अगर आपको दूसरे मेथड्स बनाने हैं, सो जस्ट राइट ऑन स्टार्ट, आपको यहाँ पे वो आ जाएगा सजेशन, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड एंटर, राइट ऑन रिज्यूम। ऐसे करके सारे मेथड से बना लो। Pause on destroy। साथ साथ आप भी करते हो, ठीक है, आप सब साथ में। This is how you create the different callbacks। अब सपोज आपको देखना है कि कब कौन सा मेथड इज कॉल्ड, जस्ट राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर। यू नोटिस हर जब भी नया वर्ड स्टार्ट होता है, वी ऑलवेज राइट अ कैपिटल लेटर। दैट इज वन ऑफ द कन्वेंशंस भी दैट वी यूज इन कॉटलिन। जब भी कोई नया वर्ड यूज होता है, वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर। सो मेक श्योर आप ये करो, अदरवाइज आपके एरर्स आएंगे।
सबने ये इतना लिख लिया? Guys, please respond. Okay, I'll wait. Make sure all these methods are inside your activity class. ये parentheses देख लेना. अगर outside आएंगे तो फिर आपके errors आएंगे. Done? Please write it in the chat box if you're done or if you're doing also. जो भी कर रहे हो मुझे बता दो. Ginny, what's the error? Hi. Actually, I wrote all those functions such as like on pause and on destroy, but on writing this on restart, it is not accepting, as in like red underlined mark is coming here. I don't know if it has something to do with the packages or something. No, you must have selected some other option while you typed enter. Do one No, thing, actually, yeah, huh, write this code again. the whole thing. Yeah, the whole thing. Okay, okay. Thank you. Okay. Ginny, can you share the screen and show me?
Type all this again. No, type on, and then capital R. Oh, you have already written on restart above. See, after start, there is a on restart Yes, already. sorry, I just Yeah, noticed. that's fine. Sorry for It's this. all right. Going now. Thank you. Okay, so अब हो गया ना? Shall I move on? रचिता आपका हो गया? Okay. ठीक है. So before running this, let me just explain a few things which are written on the main activity.kt file. As I told you, this is the name of the activity, and this is the activity class. Here you can see it's written saved instant state. Up suppose when we are watching a YouTube video, up YouTube app खोलते हो, you click on a video. जब vertical आपका वर्टिकल होता है आपका फोन, तो वीडियो छोटी सी दिखती है, सो वी रोटेट अ फोन टू सी द वीडियो इन फुल स्क्रीन. तो जब आप रोटेट करते हो, व्हेन योर स्क्रीन रोटेशन इज ऑन, द वीडियो डज नॉट पॉज, राइट, और डज नॉट स्टॉप. वो कंटिन्यूअसली चल जाती है. You don't have to pause and then rotate the screen and then play to watch the video. It's seamless, right? So that आपका, जैसे मैंने आपको बताया, जो आप वीडियो रोटेट करोगे तो आपका वो लेआउट चेंज हो जाता है, मतलब दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी. और व्हेन यू क्लिक ऑन अ वीडियो एंड वो वीडियो छोटी होती है इन द वर्टिकल पोजिशन, तो तब आपका लेआउट डिफरेंट होता है. दैट मीन्स दैट इज अ डिफरेंट एक्टिविटी. सो this change between one activity to another, to make it seamless, we use saved instances. अब save instances क्या होते हैं? जो भी आपका, जब आपका ऐप रन हो रहा है, जब आप वो वीडियो चल रही है आपकी, तो जितना भी डेटा है, सब कुछ है, वो हम सेव कर लेते हैं, so that जब दूसरी एक्टिविटी we move on, so those data is shared with the other activity. अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो हम वी कैन नॉट, द डेटा बिटवीन दीज टू एक्टिविटीज इज नॉट शेयर्ड. वो कॉमन नहीं होता है. जैसे हमारा कोडिंग में अगर कोई एक फंक्शन के अंदर कोई एक वेरिएबल इज यूज्ड, so that variable is not accessed by another function, right? हमको वो पास करना होता है. Similarly, from one activity to another, we have to pass that data. तो वो data are created in bundles, and that bundle is passed on to the on save instance function. This is the function. इसको हम ये bundle में, the data is created into a bundle, and this bundle is passed on to this function. And then this function, उसी function का हमने वो बनाया है, and it is used here. See, जो भी on create में that bundle is used, and then हमारा ये layout file call होता है. अब जो set content view है, this is used to extract the layout. जो भी हमारा main activity होगा, उसका जो layout file होता है, it is written in this. It is mentioned here. You can click on split. And ये आपका है main activity का layout. ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, पहले activity समझा दूं. तो ये जितना भी ये सारा आपका कंटेंट है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी यूज सेट कंटेंट व्यू. नाउ आर का मतलब जो भी आपका लेआउट का, जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, है ना? तो एवरी लेआउट फाइल हैज इट्स ओन आईडी. Every layout file has its own ID, and those IDs are stored in the R file. तो हमको जब भी कोई भी लेआउट एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो हम R में जाएंगे, देन R से लेआउट, देन लेआउट के अंदर जो भी आपका लेआउट का फाइल का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज अंडरस्कोर मेन है, तो यहाँ पे भी सेम नाम आएगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू सेट द लेआउट फॉर एनी एक्टिविटी. अब
Here you can see, जो भी आपका अभी अभी अगर आप इस ऐप को रन करोगे ना तो आपकी ये स्क्रीन खुलेगी. ऊपर आपका टाइटल बार आएगा जिसमें आपका ऐप का नेम होगा एंड नीचे आपको ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा इन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ये हमारा डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो बनाता है ये लेआउट. इसमें इसमें यू कैन सी कंस्ट्रेंट लेआउट यूज हुआ है. कंस्ट्रेंट लेआउट आपने जब वो बैच किया होगा थर्ड बैच तो आपने उसमें सीखा होगा कैसे यूज करते हैं. वही लेआउट यहाँ पे यूज हुआ है. बट अभी के लिए आई change this into a linear layout because it's easier to explain. Okay, so linear layout में we know अगर vertical है जैसे यहाँ पे you have to mention कि वो vertical है या horizontal. So let's take vertical. वर्टिकल मतलब जो भी हम डालेंगे वो एक के नीचे एक आएगा. देन लेआउट विथ, अब जो भी मैच पेरेंट, अगर सपोज हमको ये छोटा चाहिए होता, अगर हमको ये जो पूरा फुल स्क्रीन है, ये फुल जो लेआउट है, वी वांटेड दिस टू कवर ओनली दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन, तो हम इसको मैच पेरेंट नहीं करते. मैच पेरेंट मतलब जो भी आपका फोन का साइज होगा ये लेआउट वो पूरा स्क्रीन साइज ले लेगा. आपको जो भी वैल्यूज डालने यू कैन ऐड दिस हियर. अगर सपोज आपको चाहिए कि ये जो टेक्स्ट व्यू है जितना भी ये स्पेस है सिर्फ उतना सा स्पेस का ही लीनियर लेआउट हो, तो हम विथ को वी कैन पुट रैप कंटेंट, हाइट को भी रैप कंटेंट कर दो, तो सिर्फ वो टेक्स्ट व्यू जितना ही आपका वो लेआउट बन जाएगा. अब इसके नीचे आप यू कैन ऐड मोर लेआउट्स बट विल नॉट डू दैट. या दिस वाज फॉर योर लीनियर लेआउट. अब इसके अंदर इससे यू कैन सी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. अब ये टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट व्यू टैग यूज करेंगे. इसमें भी दिस रैप कंटेंट मींस जो जितना जो भी आपका टेक्स्ट होगा सब, अगर आपको हम और डालते कुछ भी और लिखते उतना साइज का ही आपका टेक्स्ट भी हो जाएगा. अगर आप ये मैच पेरेंट कर दो इसको विथ वन हाइट को, अब डिफरेंस देखना. अगर इसके नीचे मैं एक और टेक्स्ट व्यू डालूंगी, यू सी ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा. ये जो मैंने हाई लिखा वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा. वाई? बिकॉज ये जो हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट व्यू है हमने उसको मैच पेरेंट कर दिया तो वो पूरा स्क्रीन की उसने जगह ले ली. अब अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो नहीं दिखेगा बिकॉज वो तो सबसे ऊपर आ गया. तो इसलिए इट्स बेटर कि आप उसको रैप कंटेंट कर लो और वट एवर यू विश टू डू, इट्स योर ऐप. बट बाय मतलब यूजुअली हम स्टैंडर्ड रैप कंटेंट यूज करते हैं बिकॉज उतना ही स्पेस है ना, वाई टू वेस्ट स्पेस. सो ये हो गया लेआउट विथ एंड लेआउट हाइट. नाउ टेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा. डबल कोट्स के अंदर यू राइट वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले. All this is not needed because we are using linear layouts. Now suppose you want to color your text, तो हम इसमें text color डाल सकते हैं. अच्छा, okay, before this आपको अगर you know कि टेक्स्ट जो भी कलर्स होते हैं हम हेक्स कोड यूज करते हैं, राइट? एंड सब सारे कलर्स के तो हमको हेक्स कोड यूज नहीं, कुछ पता नहीं होता है. तो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड कलर टूल. दिस इज अ रियली नाइस वेबसाइट. इसका मैं लिंक अभी नीचे डाल देती हूँ इन द चैट बॉक्स. Usually when we are creating apps and we want to choose colors for our apps, this is a great website. इसमें आपको जितने भी colors है सारे colors you can select, उसका hex code आ जाएगा जो भी आपको यूज करना है, प्राइमरी सेकेंडरी.
इफ यू वांट टू कस्टम, उसके भी हेक्स कोड आ जाते हैं। तो दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट। इसमें आपको प्रीव्यू भी दिख जाता है, आपका वो टाइटल बार और सब कैसा दिखेगा, आपका ऐप कैसा दिखेगा, कैसे अलग अलग स्क्रीन दिखेंगी। तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। मैं इसे रैंडमली ये हेक्स कोड कॉपी कर रही हूँ। नाउ यू सी वो हेलो वर्ल्ड ये कलर का हो गया, जो भी ये कलर था पर्पल। इतना सबने कर लिया। कलर्स वगैरह डाल लो। टेक्स्ट कलर you can also if you want to add styles like bold or italic or whatever you can use text style। इससे आपका बोल्ड इटैलिक नॉर्मल तीनों होते हैं। मैंने बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया। अब अगर आपको साइज कर, अच्छा बिफोर साइज आप इतना कर लो, देन लेट मी नो, फिर हम साइज पे मूव ऑन करते हैं। आर यू गाइस डन? क्या कर रहे हो तो वो भी लिख दो, so that I know that you are listening to me and I'm not just talking to myself। एंड कुछ डाउट्स भी हो तो मुझे पूछ लिया करो। यू कैन इंटरप्ट मी और यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, आई डोंट माइंड। बस समझ आना चाहिए। कुछ भी अगर समझ नहीं आया मुझे बता दो, मैं वापस रिपीट करती रहूंगी, बट बता दिया करो। Respond please, tell me in the chat box, are you doing or are you done? You can also experiment, you can add more text views also। अभी जैसे मैंने एक ही डाला है, आपको एक और डालना है तो यहाँ पे you can add more। ऐसे आपको जितने भी टेक्स्ट व्यूज डालने हैं कैन ऐड। ओके, यहाँ पे कोड खुला हुआ है, लेट मी नो व्हेन यू डन। I'll wait one more minute, then I will move on. Oh, Rachita is done. That's nice.
What about the others? Great, Ginny, great. Ritushi, Tanya, do you want me to show you the code again? या आप खुद कर लोगे? Oh, okay. And Tanya? Okay, great. And the others? ठीक है, I'll move on then. So ये आपके text views. अब now if you want to change the size of your text, now here, अब अगर आपको if you are dealing with the sizes of text, then you use something called SP. Okay, text के लिए we use SP. And अगर हमको margins डालने हैं और कुछ कोई भी अलग except text हमको कुछ भी और size set करना है, so we use DP. Suppose I put a margin on the left, we use DP. ये units are different. For text we use SP और कुछ भी और अलग अलग size होगा तो we use DP. इसमें भी ऐसे margin डाल देते हैं. ठीक है, तो ये margin आ गया उसके इनके बीच में. अब सपोज आपको टेक्स्ट में पैडिंग डालना है. पैडिंग मतलब उसके पूरा अराउंड लाइक एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा उसके अराउंड विद जो भी आपका स्पेस होगा, स्पेस का जितना भी मेंशन करोगे उतना का स्पेस का ऐसे रेक्टेंगल जैसे आउटलाइन जैसे बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड पैडिंग. देखो मैंने पैडिंग डाला तो सी जो हेलो वर्ल्ड है टेक्स्ट के अराउंड 5 SP का गैप आ गया. दिस इज कॉल्ड पैडिंग. और यहाँ पे दिस इज द मार्जिन. ये इसका लेफ्ट मार्जिन है, ये इसका टॉप मार्जिन है. ये तो पता ही होगा आपको. Now suppose you want to insert images, so we use image view tag wrap content. सबसे पहले इमेज डालने के लिए आपको पहले एक इमेज होनी पड़ेगी, है ना. अब इमेज यूज करने के लिए वी हैव डिफरेंट कंडीशंस. जो भी आप पूरे ऐप में आप इमेजेस यूज करोगे, वेदर इट्स योर लोगो और कुछ भी आपका इमेज अगर यूज कर रहे हो, तो उनका साइज इट हैज टू बी स्मॉल साइज. 200 to 300 KB या 200 के बिलो भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट एक्सीड 300 KB बिकॉज फिर वो उसमें इंटीग्रेट नहीं हो पाता. एंड द फॉर्मेट ऑफ द इमेज शुड बी ऑफ PNG फॉर्मेट एंड द नेम ऑफ द इमेज शुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट. इसमें तो मैंने ऐसे रैंडम नाम दिया हुआ है, बट जस्ट टू से कि अगर कोई स्पेस आना हो तो स्पेस नहीं आएगा, वो अंडरस्कोर आएगा. ठीक है. एंड देन द PNG उसका एक्सटेंशन. The name cannot have any capital letters, numbers or special characters except the underscore. जैसे हम जब हम कोड करते हैं तो उसमें भी हम वेरिएबल्स के लिए identifiers के लिए we have certain conditions. Same conditions applies to the name of the images also. अब नाउ आई वॉन्ट यू ऑल कि आप गूगल पे आप सर्च करो कुछ भी रैंडम इमेज. सपोज एंड्रॉइड का लोगो ही ले लो, उसका PNG फॉर्मेट अभी सर्च करो एंड उसको डाउनलोड कर लो. कोई भी PNG वो छोटा साइज का ही होता है. इसको डाउनलोड करके सेव कर लो अपने लैपटॉप्स पे एंड देन टाइप इन द चैट बॉक्स दैट यू डन. फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि उस इमेज को जो भी आपको इमेज अभी यूज करनी है अपने लेआउट में, वो इमेज आप डाउनलोड कर लो और लेट मी नो.
रिमेंबर PNG फॉर्मेट डाउनलोड करना, नॉट JPG. अभी ये टैग कंप्लीट नहीं है तान्या, अभी इसमें और लिखना है, तो अभी मैंने ऐसे रैंडम लिखा हुआ है. Those who have downloaded the image, अब उसमें जो भी आपका वो होगा फाइल होगा, उस पर आप Ctrl+C क्लिक करो एंड यहाँ पे drawable में आके select this folder and click on Ctrl+V, और जो भी आपका इमेज है उसको पेस्ट कर दो. जैसे मैं अभी यहाँ पे, सिंस मेरा मैकबुक है तो समटाइम्स बच्चों को ये समझने में डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसका इंटरफेस अलग है. बट जो भी आपका फाइल है ना, जैसे मैंने ये एंड्रॉयड लोगो मैंने कॉपी डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने ये नाम दिया हुआ है, तो इस पे आप कॉपी कर लो, यहाँ ड्रॉएबल में आके जस्ट पेस्ट दैट फाइल, क्लिक ओके, एंड ऐसे आपको वो फाइल यहाँ पे दिख जाएगी. ये पेस्ट कर लो, देन लेट मी नो. Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हो, इजी होगा. बट मेक श्योर कि वो ड्रॉएबल के अंदर ही, वो इस फोल्डर के अंदर ही वो पेस्ट हो रहा है, कहीं बाहर नहीं. All your images go into the drawable folder, all your layouts go into the layout folder, all your images for your icon, जो आपका आइकन शो होगा इन द डिवाइसेस, उस आइकन के लिए इमेजेस गो इन द मिप मैप फोल्डर. अभी तो इसमें डिफॉल्ट आइकन वैल्यूज होंगे, बाद में इन द लेटर सेशंस आई विल टेल यू हाउ टू चेंज द आइकन ऑफ द ऐप. बट अभी के लिए जस्ट यू कैन रिमेंबर कि मिप मैप के अंदर आपके वो इमेजेस आएंगे. वैल्यूज में जितने भी आपके कलर्स यूज होंगे इन योर ऐप, द स्ट्रिंग्स यूज होंगे. अभी जैसे आपने देखा था मैंने डेमो लिखा हुआ था यहाँ पे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में, ये डेमो लिखा हुआ था, बट दिस चेंज इनटू दिस ऐप स्ट्रिंग एड स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम. दिस मीन्स कि ये जो है ये स्ट्रिंग फोल्डर के अंदर ऐप नेम का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को ये रेफर कर रहा है. दैट इज वाई ये जो मैंने डेमो लिखा हुआ था इट चेंज इनटू दिस. एज एंड्रॉइड डेवलपर्स ये अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर हम ये स्ट्रिंग रिसोर्सेज यूज करें रादर देन द डबल कोट्स में टाइप करना. इसमें भी हमने अभी जो लेआउट में लिखा है ना हेलो वर्ल्ड, इसको भी वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग रिसोर्स. इसमें आप डबल राइट क्लिक करोगे, देन इसमें एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, इसमें स्ट्रिंग का रिसोर्स का नेम डाल दो. जैसे मैंने लिखा वेलकम, वेलकम वैल्यू कोई भी नाम दे दो एंड देन ओके कर दोगे तो वो आपका स्ट्रिंग रिसोर्स बन गया. सिमिलरली इसको भी राइट क्लिक, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, गिव इट अ नेम, एंड प्लीज ट्राई करो कि ऐसे नेम्स दो कि आपको समझ आए कि वो स्ट्रिंग की क्या वैल्यू हो सकती है. जैसे मैंने अभी वेलकम टू एंड्रॉइड स्टडी जैम्स का मैंने नाम दे दिया वेलकम वैल्यू, सो दैट आई नो कि अच्छा वो वेलकम वाली स्ट्रिंग का नाम ये वेलकम है. अब मैं हेलो वर्ल्ड का भी मैं ये हेलो वर्ल्ड डाल दिया. जैसे ऐसे जो रीडेबल हो, जो समझ पाओ, वैसे नेम्स ही दिया करो. ठीक है, इट्स गुड प्रैक्टिस टू चेंज योर टेक्स्ट वैल्यूज into string resources. So all these resources will be saved in this file. You see, अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया. कलर्स में भी जो भी कलर्स यूज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे. थीम्स मतलब वही आपके ऐप के कलर के थीम्स, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे. तो सबने पेस्ट कर लिया. टेल मी हाउ लॉन्ग दिस सेशन. ओके 5:30 तक है श्रुति, एंड वी जस्ट डन. अभी बस ये लेआउट को मैं आपको रन कराना सिखा दूंगी इन योर फोन, देन वी डन.
मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे. Has everyone pasted the image file in the folder, in the drawable folder? Okay. अब इस पे बस image tag में just add src add drawable. हमने एंड्रॉइड लोगो नाम दिया था, तो यहाँ पे ये आ गया, just selected. अब तो मैंने ये रैप कंटेंट किया हुआ है, इसलिए जो हमारे इमेज की साइज है वो वही साइज का हमारा व्यू बन गया. सपोज इफ यू वांट टू चेंज द साइज, तो आप डीपी में, लाइक आई सेड, टेक्स्ट के अलावा जो भी साइज होंगे सब कुछ डीपी में आएगा. तो ये पूरा आपने 20 डीपी डाल दिया, इसको 15 डीपी कर दिया. बहुत छोटा हो गया. दिस इज अ गुड साइज. इसमें आपको मार्जिन डालना हो तो मार्जिन में डाल सकते हो. ऐसे करके आप, मैं तो रैंडम वैल्यूज डाल रही हूँ, आप तो आपको जैसा बनाना है अपना, जैसा दिखना चाहिए वैसा आप कर सकते हो. अगर आप इसको सेंटर में लाना है तो उसके हिसाब से लेफ्ट मार्जिन डाल देना. ठीक है, मैं बस ऐसे एग्जांपल करके दिखा रही हूँ. दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट इमेजेस इन योर लेआउट फाइल्स. आपका ये हो गया या मैं आगे कर लूँ? छोटा सा ही था ये, तो बस 2 लाइन लिखी थी. ओके, सो ये आपका लेआउट हो गया. ठीक है, अब आपका जब भी आप इस ऐप को रन करोगे तो आपकी स्क्रीन ऐसे दिखेगी, जो भी आपने अभी डिजाइन बनाया हुआ है ऐसी वो स्क्रीन दिखेगी. नाउ इफ व्हेन यू वांट टू रन योर ऐप, जस्ट गो टू main.activity.kt फाइल. हियर हमने ये सब लिखे थे ना, अब हम जब रन करेंगे तो उसमें लिखा आएगा कि कब कौन सा स्टेट आपका कॉल हुआ था. ये लाइंस आपकी प्रिंट हो जाएंगी. नाउ बिफोर रनिंग योर ऐप, tell me everyone, do you want me to run this on an emulator or teach you how to connect your physical device, your Android device, and उसमें आप अपना ये ऐप लॉन्च कर पाओ, या आप सबको emulators यूज करने हैं? Guys, please respond. Yes, true, Tanya. That's why रितुषी, बस वही डिफरेंस है कि एमुलेटर आपका लैपटॉप को बहुत स्लो कर देगा. एंड अगर आप अपने फोन्स में, वैसे तो इन रियल वर्ल्ड अगर आप जब एप्स बनाओगे तो वो तो फोन में ही आप रन करना चाहोगे ना, रन करके अपने फोन में देखना चाहोगे. सो इट्स बेटर दैट यू यूज अ फिजिकल डिवाइस, बट आई विल टीच बोथ इफ यू वांट. ओके, physical. So everyone, please connect your phones using a USB cable to your laptops. And chat box में लिख दो. I will wait till 5:11. Just 1 minute. Please जल्दी से USB cables आके अपने कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप से. ठीक है, अब अपने अपने फोन्स में गो टू योर सेटिंग्स में जाओ. अगर आपका फोन, अगर आपका एंड्रॉयड का वर्जन इज ग्रेटर देन
V8.0, तो आपको सिस्टम पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल आई डोंट थिंक इतने पुराने फोन्स होंगे। सो जस्ट गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड अबाउट फोन, सेटिंग्स में आपके होगा, नीचे जाके स्क्रॉल करोगे, बॉटम पे होगा एकदम। Go to about phone, then click this build number at least 7 times. बार बार से क्लिक करते रहो at least 7 times. अब जब ये क्लिक कर लोगे, बैक करोगे, रिटर्न टू द प्रीवियस स्क्रीन, यू विल सी आपका ये डेवलपर ऑप्शंस वाला वो आ गया होगा। ये ऑप्शन आपको ये मेन्यू दिख रहा होगा। इससे डेवलपर ऑप्शंस में आप जाओ, यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो यू विल फाइंड एन ऑप्शन कॉल्ड यूएसबी डिबगिंग। इसको आप ऑन कर लो एंड अलाउ कर दो। ये नहीं करोगे तो आपका ऐप एंड्रॉयड स्टूडियो से आपका फोन एंड्रॉयड स्टूडियो से कनेक्ट नहीं होगा एंड देन वो ऐप लॉन्च नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी मैंडेटरी स्टेप। I'll repeat, go to about phone, click on build number at least 7 times, then press back. You'll see option called developer options. Click on this and switch USB debugging on. जितने भी आ रहे होंगे अलाउ अलाउ सबको ओके ओके करते जाओ। एंड वंस यूर डन, यूल सी यहाँ पे, जैसे मैं तो अभी एम्यूलेटर यूज करूंगी तो इससे मेरा रैंडम डिवाइस का नाम आ रहा है, बट आपका जो भी डिवाइस है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इतना करके मुझे बताओ कि आप कुछ डाउट है तो पूछ लो। And the rest, are you done? Astha, Tanya. Okay, Tanya, no problem. I'll wait. Except Tanya, for others, you can click on this button, run, और वो रन हो जाएगा। आपके फोन में वो ऐप लॉन्च हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। आप रन करोगे, वेट फॉर दीज टास्क्स टू एग्जीक्यूट एंड आपका वो लॉन्च हो जाएगा। ओके आस्था, ठीक, आपको यहाँ पे सक्सेस आ गया। तो अब आपके फोन्स में मैंने ये लेआउट बनाया था, तो मेरा ऐसा लेआउट दिख रहा है। आपको जो भी लेआउट होगा वो आपका दिख जाएगा। यू सी आपका एक ऐप बन गया, दिस डेमो ऐप। इसका ये आपका मेन एक्टिविटी है और ये आपका लेआउट फाइल है। दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार। टाइटल बार का चेंज करने में वी लर्न इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी के लिए जो भी आपका लेआउट था, दिस इज योर एक्टिविटी। सबका रन हो गया? Isn't it exciting? फर्स्ट टाइम ऐसे अपना ऐप लॉन्च करना। आई रिमेम्बर जब मैंने फर्स्ट ईयर में किया था, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि ओह मेरे फोन में ये ऐप आ गया, वाह, मैं तो बहुत खुश हुई थी।
So guys, are you done? Now should I move on to show you कहाँ हमारे वो statements जो हमने लिखे थे कहाँ print हुए? Okay. So now there is something called the logcat window. आपके जितने भी errors आते, जैसे आपका जब भी आपका ऐप रन हो रहा है ना, तो जितने भी बैकएंड में प्रोसेसेस हैं, जो भी उसका रिकॉर्ड्स होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन द लॉगकैट विंडो. अभी देखो ये सब जो भी मेरा ये ऐप अभी इस फोन में चल रहा है ना, उसके सारे वो सब यहाँ पे लिखे आ रहे हैं. जितने भी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते रहते हैं, वो यहाँ पे लॉगकैट में आते रहते हैं. नाउ इफ यू वांट टू सी कि ये स्टेटमेंट्स कहाँ प्रिंट हुए, so just write system.out. देखो हमने ऐप स्टार्ट किया था, तो ऑन स्टार्ट कॉल, तो ये हमारा प्रिंट हो गया. फिर ऑन रिज्यूम प्रिंट हो गया. अब जब मैंने बैक कर दिया था, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से रन करके दिखाती हूँ. नाउ लुक एट लॉगकैट. अभी मैंने रन किया ना, मैंने अभी खोला नहीं है वो ऐप, इसलिए वो ऑन स्टार्ट हो गया और वो ऑन रिज्यूम हो गया. नाउ इफ आई क्लिक बैक, तो ऑन पॉज हो गया. अब मैंने उसमें गई नहीं वापस, ऐप में स्क्रीन पे आ गई, तो वो ऑन स्टॉप में चला गया, देन वो डिस्ट्रॉय भी हो गया. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस ऐप अगेन, देखो कितने 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 कम टाइम में, देखो 0.001 का डिफरेंस, 0.002 का डिफरेंस है इन ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम. कितने फास्टली दीज मेथड्स आर कॉल्ड. नाउ सपोज यहाँ पे अगर अभी तो हमने बटन्स नहीं डाले हैं, बट अगर हम बटन क्लिक करते और हम किसी और एक्टिविटी में जाते ना, सो ऑन पॉज कॉल हो जाता, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट एक्टिविटी है, इट वुड हैव गॉन टू द ऑन पॉज स्टेट एंड द न्यू एक्टिविटी वुड हैव बीन क्रिएटेड, सो द ऑन क्रिएट वाज वुड आल्सो बी कॉल्ड, एंड देन ऑन स्टार्ट आल्सो, एंड देन ऑन रिज्यूम आल्सो. एंड अभी देखो मैं यहाँ से अगर बैकग्राउंड एप्स को हटा दूं, तो हमारा ऑन स्टॉप हो गया एंड ऑन डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया. सो आई होप आपका थोड़ा वो एक्टिविटी लाइफ साइकिल थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, कैसे कौन से ऑर्डर में दीज मेथड्स आर कॉल्ड. So this is how you can check out the outputs. Okay, so this was all about the layouts and कैसे आप अपना फर्स्ट एक सिंपल सा बहुत ही बेसिक सा ऐप कैसे बना सकते हो. नाउ मेनी अ टाइम्स हमको बहुत सारे एक्टिविटीज यूज करने होते हैं एक ऐप में. ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप सिंगल मेन एक्टिविटी में ही सब कुछ कर दो, बहुत सारे एक्टिविटीज बनाने पड़ते हैं. बट ये जो एक्टिविटीज होते हैं ना, दे टेक अप अ लॉट ऑफ मेमोरी स्पेस, और we don't want our apps to take a lot of space because then people won't be liking it, right? Also बहुत स्लो होगा, प्रोसेसेस स्लो होंगे, आपका फोन भी गर्म हो जाएगा, कितने उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं. सो टू हैंडल दोज प्रॉब्लम्स वी यूज फ्रैगमेंट्स. अब फ्रैगमेंट्स क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ व्हाट्सएप. व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप खोलते हो, ये आपका पेज खुलता है. अब यहाँ से अगर आप अगर यहाँ से आप स्टेटस में क्लिक करोगे, सो ये एरिया तो आपका सेम रहता है ना, बस आपका इतना सा पोर्शन चेंज होता है. फिर आप कॉल्स में क्लिक करोगे तो बस इतना सा पोर्शन चेंज होता है ना. और अभी हमने जैसे देखा, हमने मेन एक्टिविटी बनाया, ऐसा तो कुछ था नहीं ना कि हम उसमें सिर्फ उतना सा पोर्शन को ही चेंज कर रहे हैं, ऊपर का सब सेम रख रहे हैं. टाइटल बार इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो आपका डिफॉल्ट होता है. बट ये जो पूरा बनाया है, ये व्हाट्सएप चैट स्टेटस, ये पूरा एक सिंगल लेआउट का पोर्शन, लेआउट का पार्ट है. एक लेआउट के अंदर तो हमने ऐसे एक पोर्शन को चेंज नहीं कर पाए ना. एक है तो एक कोई लेआउट अगर हमने बनाया, इट्स स्टैंडर्ड, इट्स फिक्स्ड, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते. चेंज करेंगे तो वो अलग एक्टिविटी बन जाएगा. बट ऐसे तो आप कर सकते हो, देयर इज नो इशू. आप इसका चैट का अलग एक्टिविटी बना लो, स्टेटस का अलग बना लो, कॉल का अलग बना लो, एंड यहाँ पे बटन्स डाल दो कि उस पर क्लिक होगा तो अलग एक्टिविटी बन जाएगी. तो दैट विल टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस. सो हम क्या करते हैं, जैसे ये पोर्शन तो सेम ही रहना है, तो इसको हम बना देते हैं पेरेंट, एंड इसको बना देते हैं हम चाइल्ड. बस हमको इतना पोर्शन चेंज करना है.
we just keep changing these styles. These styles are called fragments. ये आपका एक्टिविटी का पोर्शन होगा, एक्टिविटी में आपका ये पोर्शन आएगा और ये एक फ्रैगमेंट आएगा. इसको हम बोलेंगे हेडर, टाइटल, जो भी आप बोलना चाहते हो आप कॉल कर सकते हो. एंड दिस बनाने के लिए, दिस पोर्शन हम क्रिएट करने के लिए वी यूज फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स को कैसे कोड करना है, कैसे अपने ऐप में इंटीग्रेट करना है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. अभी आई एम जस्ट गिविंग यू अ इंट्रोडक्शन टू व्हाट फ्रैगमेंट्स आर एंड उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं. तो अभी हाँ, सो लाइक आई सेड दे टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस. सो अगर हम फ्रैगमेंट्स यूज करेंगे तो दे वर्क फास्टर. एंड ऑल्सो ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो चैट वाला, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये जो फ्रैगमेंट है सेम आप उठा के कोई दूसरे एक्टिविटी में सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. बट ये आप किसी एक्टिविटी के साथ नहीं कर सकते. अगर आप कोई एक्टिविटी बनाओ, यू कैन नॉट इंटीग्रेट द, you cannot copy paste another activity inside a single activity, but in fragments you can do that. वही same fragments आप हर जगह लगा सकते हो. ठीक है, so they are reusable across multiple activities, so that also saves us a lot of time as developers. हमको बार बार same code लिखने से better है हम same चीज copy paste कर ले, है ना. So a fragment represents a behavior or a part of a user interface in an activity. We can combine multiple fragments in a single activity to build a multi-pane in UI, but we cannot combine multiple activities to make a multi-pane UI. Multi-pane UI मतलब जैसे इसमें ये था, this is a one pane, this is another pane, change हो रहा है ना, तो multi-pane हो गया. So yeah, that was it about fragments. अभी अगर किसी को कुछ भी doubts है, then please ask. Otherwise, we will wrap up. I hope आपको आज मजा आया होगा, because last session में तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे, आज हमने खुद से बनाया. आप अभी after the session you can add more views, you can add more images and और थोड़ा सुंदर बना सकते हो अपने layout को. Or you can experiment. It was actually very interesting. Hi Ritika, I'm Tanya. Hi. Just for the information, actually I'm from MCA first year, and in my graduation, in my BCA. Oh, hi Dee, sorry. I thought नहीं, it's okay. Actually मैंने Java में Android development करी थी, तो it was really very interesting to learn in Kotlin right now. हाँ, और अब आपको जावा आती है, तो आप तो Kotlin कोड में अपना वो जावा के एप्स भी you can integrate, you can use them. Yes. तो वो बहुत अच्छा होता है. That's nice. चलो फिर I'll wrap up now. और अच्छा हाँ, so the next session will have the next session on Saturday. So अभी के लिए जो भी आपको consents चाहिए थे for these 3 batches, for 4, 5 and 6 batches, आज हमने जितना बताया वो सारे उससे हो जाएगा. So I want कि आप Saturday तक at least 6 तक, आगे भी करना है तो it's your wish, अगर आपको मजा आ रहा है. And I'm telling you, अभी स्टार्टिंग की फर्स्ट 3 तो बहुत ऐसे बोरिंग से थे, थ्योरी से थे, सिर्फ वो अबाउट मी का ऐप बनवाया था. बट इसमें you learn about navigation drawer, how to add a menu in your app, you can create a game app using that, you can create the dice roller app. बहुत सारे apps आप बस इन्हीं concepts से बना सकते हो. So make sure to complete these batches, these 3 batches, 4, 5, 6 till before the next session. I'll message you about the timings on the WhatsApp group. But तब तक 6 तक कर लेना, आगे भी कर सकते हो, it's your wish. But trust me, बहुत मजा आएगा. ये तो बस छोटा सा लेआउट बनाया, तो इसी में इतना अच्छा लगा, तो आगे जाके तो और भी मजा आएगा. If anyone has any doubts, then please let me know. Otherwise, you can